openers. Wagbil is the big name in Thana rural, one of the big team, done an outstanding job in R.C. Patil Foundation Cup in 2006 and 2005. Big name, Wagbil. Next match between Badshah 11 and Jivdani Baman Dongri. And then Gaudevi Nitlas meet Jayadurga Surai, Aryan Sport Chhidke meet Shelu Mata Krida Mandal, Om Sai Temgar meet RD Triple 40 in Bhiwandi Open, Dhanesh 11 and Bunty Sport Water match in Bhiwandi Open. Then the ninth match today, the winner of third round and the winner of fourth round, the 10 match, winner of fifth round and winner of sixth round. Then the 11th match in junior emerging VR Sport and Usmania. The 12th match SK Enterprises and Sona Devi. Match of evening in Bhiwandi Open. High voltage match. And then last match Veer Tanaji Dapode and Krishna Enterprises in 40 plus. So back to cricket now. Two openers on the middle. Sandeep Patil and Sandeep Naik. Remember, Sandeep Naik was the hero in Shrikar President Cup 2002 when Jai Bajrang Karyoli won Das Cup. He played some sweet stroke right our Priyan's studio over the extra cover. Is the key player. Both are very experienced campaigner, and Sandeep Patil hit longest six in R.C. Patil Foundation in 2004. Nandu opened the bowling attack. First ball, fine delivery. Batsman looking for a cut stroke, but too close to cut. Miss him outside the off stump. बल्कि देखा जाए तो जगह थी हाथ खोलने के लिए, विड्थ मिला था उनको, लेकिन फायदा नहीं उठा पाए. Nandu Patil, right arm round his stumps. This time fine delivery, we wait for umpire signal. They threw for run inside edge of the bat. And finally Sandeep Naik off the mark with single. And Jai Bajrang Kariwali won without loss. बहुत बड़ा इनसाइड एज लगा था विकेट कीपर के लिए, काफ़ी मुश्किल काम था. पंकज विकेट कीपर की भूमिका में है, जो बहुत ही धाकड़ बल्लेबाज माने जाते हैं वागबिल टीम के. This time away from the office stump, white signal from umpire. 1-2 extra, score moves up to 2 without loss. Nandu, this time put away on the onside, all on the ground, and batsman taken one. Ajay, remember Sandeep Patil, one of the classical stroke player, and he is the best puller. Nandu Patil, turn from Asha Patil north stand, facing him batsman Sandeep Naik. Goes to Naik, reverse to it. Ball is travelling all the way to the square, is third man for 4. Excellent shot. They played that one with a lot of control. Look at that. Angle delivery, used the angle pretty well and found the gap as well, right between the two fielders. Great shot. First boundary of the match from the bat of Sandeep Naik. Score moves up to 7 runs without loss. Great stroke indeed played by Sandeep Naik. Nandu Patil, right arm round his stumps.
This time tacking on the onside. Fielder finds the ball in deep. Enough time, batsman gets one. Good start, I think, from Jai Bajrang Karyoli Sports. 8 without loss. One of the big name in Thana ruler, Wagbil. This time left lone. No stroke offered from Sandeep Patil. And that marks end of the first over. Jai Bajrang Karyoli 8 without loss. एक ओवर की समाप्ति 8 रन. सदी भी शुरुआत कही जा सकती है. ओवर की अंतिम गेंद मैं समझता हूँ कि बैट्समैन को स्ट्रोक खेलना चाहिए था. वो पहले ही शफल कर चुके थे और गेंद उनकी रीच में थी. बल्ला चलाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं लाइन को ठीक तरह से जज नहीं कर पाए थे संदीप पाटिल. बल्कि संदीप नाइक 6 पर बैटिंग करते हुए 1 पर संदीप पाटिल है. 1 रन अतिरिक्त के सौजन्य से मिला है. 8 रन बिना किसी नुकसान के जय बजरंग कारिवली पहले ओवर के बाद. 4 ओवर्स का खेल अब इस पारी में बचा हुआ है. टॉस को जीता वाकबिल टीम के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया. संदीप नाइक और संदीप पाटिल दोनों भी बहुत अनुभवी खिलाड़ी है. घाट घाट का पानी पी चुके हैं. बिल्कुल. श्रीकार कप जो इस ग्राउंड पे 2002 में हुआ था, श्रीकार नगर अध्यक्ष का, उसमें संदीप नाइक की जो बल्लेबाजी थी और गेंदबाजी, उसने इतिहास बनाया. देखिए, वाकबिल टीम के बारे में अजय करत मैं बताता चलूं कि नजीब मुल्ला का नगर अध्यक्ष 2009. व्हाट अ मैच बिटवीन वाकबिल एंड राबोड़ी. आदलिया ने अख्तर शेख को 3 सिक्सर लगाए थे, लेकिन पलटवार अख्तर शेख का रहा था और बहुत क्लोज इनकाउंटर में वो फाइनल मुकाबला वाकबिल हारी थी. पंकज विकेट से चिपके हुए बहुत महान खिलाड़ी. इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर फुलर लेंथ की गेंद वाइट. मेरे ख्याल से शॉर्ट थर्डमैन पर मनुष पाटिल है. मेगा जो कि बहुत महान खिलाड़ी थे, उन्होंने शायद क्रिकेट से संन्यास लिया. खेलते हैं लेकिन कम खेलते हैं. इस मरतबा स्लॉक स्वीप किया गेंद को मिड विकेट के ऊपर. हाई एंड सम मैसिव हिट. 6 रन. Very poor delivery from the bowler Chetan Patil. Juicy full toss and look at that foot away in style. Great hit. कमाल की बल्लेबाजी अब शुरू कर दी है. देखिए, संदीप पाटिल वैसे भी बहुत अच्छे पुलर हैं और इसको उछलता हुआ पहुंचा है 16 रनों पर. 16 गेंदबाजी कर रहे हैं चेतन पाटिल. इस मरतबा बहुत ही करारा ऑन ड्राइव ऑन दी अप खेला. डीप में फील्डर को पाया. 1 रन. एक रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 17 रनों पे पहुंचा है. 17. चेतन इस मरतबा पैडल स्वीप की कोशिश और आउट हो गए वहां पर संदीप नाइक. आउट हो गए. संदीप नाइक पैडल स्वीप करना चाहते थे, ऊपर गेंद लगी और ये देखिए किस तरह से विकेट गिरा. पहला विकेट गिरता हुआ आउट होके जा रहे हैं संदीप नाइक. आउट होने से पहले 6 रन बनाए. एक रिवर्स शॉट चौका लगाया. नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं. पशु
पशु पाटिल ऑलराउंडर की फहरिस्त में गिने जाते हैं और फाइनल ओवर अक्सर उन्होंने किया है। बढ़िया गेंद, बीट किया बैट्समैन विकेट कीपर को, लेकिन रन चुराते हुए ओवर थ्रो हुआ है वहां पर। जोखिम बड़ा रन पूरा किया बाई का। 1 रन स्कोर में आता हुआ 18 रन। कहीं ना कहीं अजय दिन की रोशनी में 50 प्लस, वन ऑफ द गुड टोटल। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि थाना परिसर की बहुत ही मजबूत साइट है वाकबिल। हाँ बिल्कुल, हालांकि 45-50 पर भी बहुत अच्छे मैचेस हो रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, 5-5 ओवर के खेल में। खूबसूरत गेंद, फुलर लेंथ रखा था, बिट करने में कामयाब रहे बैट्समैन को। विकेट कीपर ने भी एक दबाव बनाया हुआ है। पहले ओवर में पंकज विकेट कीपिंग कर रहे थे, क्लोज कीपिंग आप देखने को मिल रही है। और कीपर जब ऊपर खड़ा रहता है, नंदू है इस समय, तो बल्लेबाज पर जरूर एक अतिरिक्त दबाव बनता है। इस बार ओवर पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया है काउ कॉर्नर की तरफ, खिलाड़ी मौजूद है वहां पर। 1 रन लेने का अवसर और 1 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाजों को। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर जय बजरंग कारिवली। 2 ओवर का खेल समाप्त। देखिए अजय गरत, 2 ओवर की समाप्ति पर रन बने 19, 1 विकेट गिरा है जय बजरंग कारिवली का। देखिए तमाम ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि आपको मास्क पहनना है। गेंदबाजी में नंदू पाटिल को कंटिन्यू रखा गया है। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। राइट आर्म राउंड विकेट क्रीज में पीछे जाके खेला है प्रशु ने 1 रन। स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 20 रनों पर। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान का A1 शो महापौर चषक 2021 की सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत। लगभग आप दोपहर शुरू हो चुकी है। नंदू पाटिल राइट आर्म राउंड स्टंप्स, इस मर्तबा आसमान में खेला है, खिलाड़ी उसके नीचे और आउट हो गए संदीप पाटिल। बादशाह 11 के कैप्टन और जीवदानी बामन डोंगरी की कैप्टन, दोनों से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। स्कोर इस वक्त 20 रन है। तीसरे ओवर का खेल चल रहा है। 3rd ओवर इन प्रोग्रेस, 20 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। रनों की रफ्तार बढ़ाने का प्रयास कर रहे बल्लेबाज और उस चक्कर में विकेट भी गिरते हुए। सीधे बैट से और सीधे फील्डर के पास बहुत ही शानदार कैच, बहुत ही दर्शनीय कैच लॉन्ग ऑफ की दिशा में, विकेट गिरता हुआ एक और। कहीं ना कहीं स्ट्रोक को चेक किया था मेरे ख्याल से, जिस तरह से शॉट खेला था और आउट हो गए थे बैट्समैन। केतन थे पीछे, बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है बाएं हाथ के केतन पाटिल। मुझे आज भी याद है अजय गरत कि केपीएल जो 2014 में हुआ था कालेर में, उसमें केतन पाटिल ने जो 3 सिक्सर लगाए थे अद्भुत। वहीं कुछ सिक्सर हेलीकॉप्टर लगाए थे अख्तर शेख ने राबोरी के। कमाल के खिलाड़ी हैं केतन। हैट्रिक पर है, बढ़िया गेंद बल्ले के करीब से जाती हुई विकेट कीपर के पास। बहुत खूबसूरत गेंद। अगली 2 टीमों को तैयार रहना है। खेलने वाली टीमें बादशाह 11 और जीवदानी बामन डोंगरी।
अच्छा ड्राइव फुल पे लेकर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ हाफ वॉली पे लिया था। और इस टॉस को करेंगे हमारे साथी कमेंटेटर ओमकार शेट्टे। हेलो, बादशाह 11 और जीवदानी बामन डोंगरी दोनों की कैप्टन को जुड़ जाना है। इस मरतबा बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद हल्का सा मोमेंटा, कमाल की बॉलिंग हो रही है। 3 ओवर की समाप्ति। जय बजरंग कारोली टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई केवल 21 रन और 3 विकेट। बहुत बढ़िया स्पेल समाप्त हुआ नंद कुमार का, अर्थात नंदू का। 2 ओवर में मात्र उन्होंने 10 रन खर्च किए और 2 विकेट चटकाए। टोपी पहनकर उन्होंने गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को भी उन्होंने टोपी पहनाई। अमर महतो इस मैच के ऑन फील्ड अंपायर। और देखिए अंपायर ने भी मास्क पहना हुआ है। सभी दर्शकों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मास्क का इस्तेमाल करें। चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर आपको खेल का मजा लेने के लिए आना है तो मास्क बहुत ज़रूरी है। हातिम कपासी ये एक और अंपायर इस मैच के लिए, अनुभवी अंपायर है हातिम कपासी। 21 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। जय बजरंग कारीवली टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई। रनों की रफ्तार ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है, सिर्फ 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनते हुए। अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है। बॉलिंग में परिवर्तन। पंकज की पहली गेंद शरीर की तरफ, बैट्समैन ठीक तरह से समझ नहीं पाए थे। 1 रन जरूर पूरा किया है और शायद बल्ला भी लगा था वहां पर गेंद पर। बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर है पंकज यादव। देखिए कई सालों से खेल रहे हैं, लेकिन वाकबिल का जब भी नाम निकलता है मेगा, आदलिया, केतन, पंकज, ये वो नाम है जो हमेशा ऊपर रहे। पंकज ने टीडीपीएल में एक अर्धशतक जड़ा था। बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है। घुमा दिया है इस बार। फील्डर है वहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में। बढ़िया फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। 1 ही रन मिला है। ऐसे लगा कि शायद कम से कम 2 रन मिलेंगे बल्लेबाज को, लेकिन नहीं। अभी तक का खेल जो हुआ है, मैं समझता हूँ कि वाकबिल टीम के कैप्टन काफ़ी खुश रहेंगे। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। फील्डर्स का योगदान भी बढ़िया रहा है। अच्छा एंटीसिपेशन वहाँ पर। नैन पाटिल थे वहाँ पर जिन्होंने इस गेंद को रोका। पंकज डिसेंट हाइट है उनकी, अच्छा बॉलिंग एक्शन है। बहुत लंबा बॉलिंग रनअप नहीं है, बीच बीच में काफ़ी तेज़ भी करते हैं। लोअर फुल टॉस इस बार उठा के खेल दिया है, लेकिन जितना एलिवेशन वो चाहते थे उतना बना नहीं। यहाँ पर हेजिटेशन है, रन आउट का अवसर और बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में। जय बजरंग कारीवली टीम ने अपना 4था विकेट गंवा दिया है। मेघनाथ पाटिल रन आउट का शिकार बने हैं। शॉट अच्छा था, अच्छे से टाइम किया हुआ स्ट्रोक था। ज़्यादा ताकत झोंकने का हालांकि मौका नहीं मिला था, क्योंकि लोअर फुल टॉस गेंद और शरीर से ज़्यादा दूर नहीं थी, जिस वजह से ताकत नहीं झोंक पाए। लेकिन यहाँ पर दूसरा रन बिल्कुल भी नहीं था। गेंदबाज पहले विकेट कीपर के पास फेंकना चाहते थे गेंद को, लेकिन फिर देखा कि मौका है उनके पास, उनके ही छोर पर काम तमाम होता हुआ बैट्समैन का। 24 पर 4। कमाल की बॉलिंग हो रही है वाकबिल की तरफ से। अभी तक अगर हम देखते हैं पहले ओवर को निकाल देते हैं तो उसके बाद आज़ादी बरतनी नहीं दिए। कमाल की बॉलिंग करे पंकज यादव। स्ट्राइक जयेश के पास नए बैट्समैन जतिन आए हैं। इस बार उछाल दिया है, गेंद हवा में, फील्डर मौजूद है काउ कॉर्नर पर, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गेंद फील्डर के सिर के ऊपर से 6 रन। रेंज रोवर शॉट। यस, रेंज रोवर को निशाना लेके खेला हुआ स्ट्रोक। ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद में ज्यादा खराबी नहीं थी। शॉर्ट हम पुल किया, एग्जीक्यूशन लाजवाब, परफेक्ट टाइमिंग और गेंद रेंज रोवर के पास जाती हुई रेंज रोवर सिक्सर। सख्त जरूरत है इस तरह के बड़े बड़े शॉट्स की, क्योंकि अब ज्यादा गेंदे पारी में शेष नहीं है। एक और, ये तो बहुत दूर जाएगी, गगनचुंबी सिक्सर। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं जयेश मात्रे। टूट पड़े उस गेंदबाज पे जो मजबूत करिए। ये देखिए क्या शॉट है, माइकल क्लार्क और स्टीव स्मिथ की शॉट के पीछे झलक। जा रही है, जा रही है, जा रही है, हाई एंड हैंडसम, आउट ऑफ ग्राउंड। बहुत कमजोर गेंद थी,
जूसी फुल टॉस भी थी और वो भी लेग स्टंप की दिशा से भी भटके थे और उस पर पड़े फटके। 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के। जो चुप्पी दर्शकों ने साधी हुई थी उसको तोड़ दिया है बैट्समैन ने। दर्शक अब शोर मचाते हुए सिक्सर की मदद से स्कोर आगे उछलता हुआ 36 पर पहुंच चुका है। ये भी तगड़ा प्रहार है, ये गैप में भी है और बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। एक और सिक्सर। 6-6-6। दिस इज द ग्रेट हिट। ये शॉट को हम बहुत जबरदस्त कहेंगे। पावर बैक स्ट्रोक जेट विमान की तरह जाता हुआ फ्लैट 6 वाइड ऑफ लंगन इनटू द स्टैंड्स। मूड बना दिया है और एकाएक टूट पड़े, पीछे पड़ गए पंकज यादव के बल्लेबाज जयेश मात्रे। 4 ओवर में पलटवार हम देख रहे हैं। जय बजरंग कारिवली का 42 रन और अजय खरत खतरे की घंटी बजा दी है। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है, बादशाह 11 और जीवदानी बामन डोंगरी। अभी तक का खेल किस तरह से हुआ है दिखाया जा रहा था। कैच बहुत अच्छा लिया गया था लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, लेकिन पिछले ओवर की 3 गेंदों पर 3 तगड़े प्रहार। शानदार बैटिंग करते हुए जयेश मात्रे 5 गेंदों पर 19 पर बैटिंग करते हुए। जतिन ने अभी तक कोई गेंद नहीं खेली है। आखिरी ओवर का खेल इस पारी में शेष है। जबरदस्त पलटवार जय बजरंग कारिवली टीम द्वारा देखने को मिल रहा है और एक अच्छे स्कोर की तरफ अब अग्रेसर इस मुकाबले में कारिवली टीम। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज पंकज गोंधड़े। पिछले ओवर में भी पंकज थे, लेकिन वो पंकज यादव थे। गोंधले की पहली गेंद अतिरिक्त उछाल लेकर आई थी। ये अलग शैली के बॉलर है, छोटा सा बॉलिंग रनअप मिश्रण करना पसंद करते हैं अपनी गेंदों में। काफी वैरायटी इनकी गेंदबाजी में देखने को मिलती है। इस बार जाने दिया है विकेट कीपर के पास, क्योंकि दिशा इन गेंद है। अंपायर हातिम कपासी का वाइड का इशारा। स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर 43, 43 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। शुरुआत थोड़ी निराशाजनक रही थी कारिवली टीम की, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। ओहो, एक और लंबा हिट। इस बार अपने हाथ खोले हैं बैट्समैन जतिन ने। शानदार सिक्सर। कल का जो रात का मैच था जिसमें हमने काफी छक्के देखे थे जॉय कुमार टेमगर और खारबाव के बीच में, छक्कों की मूसलाधार बारिश विद द स्पिन खेला। ये देखिए ऑफ ब्रेक गेंद थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर रखा था, काफी टर्न भी हुई थी गेंद, लेकिन विद द स्पिन बहुत ही बढ़िया स्लॉग स्वीप 6 रन। युवा खिलाड़ी है जतिन, लेकिन भरपूर काबिलियत रखते हैं अच्छे शॉट्स लगाने की। इस बार हालांकि जहां पर खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए। सिंगल जरूर मिलेगा और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए जय बजरंग कारिवली टीम के दर्शकों में उत्साह की लहर सी दौड़ गई है। दर्शकों से एक बार फिर से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मास्क का इस्तेमाल करें। ये देखिए काफी खुश खेमा इस समय कारिवली टीम का। ऊपरी किनारा और गेंद काफी फाइन ट्रेवल हो रही है। आउटफील्ड तेज है, कोशिश अच्छी लेकिन नाकामयाब कोशिश फील्डर की। 4 रन, किस्मत वाले 4 रन मिलते हुए। किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है और बड़ी ही बहादुरी भरी बल्लेबाजी की है अभी तक इस मैच में बैट्समैन जयेश मात्रे ने। और अजय अटैक भी किस पे किया? उस पंकज पे जो पिछले 20 साल से स्टार हैं वाकबिल के। जी बिल्कुल, अच्छे खिलाड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन बल्लेबाज इस समय कहीं ना कहीं हावी होते हुए इस बार पुल कर दिया है सीधे फील्डर के हाथों में। रेंज रोवर कैच। एक बहुत ही शानदार पारी खेलने के बाद पेविलियन का रास्ता नापते हुए बैट्समैन जयेश मात्रे। टीम संकट में फंस गई थी, पहले 3 ओवर्स में ज्यादा रन्स नहीं आए थे, लेकिन बहुत ही तूफानी अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की। आसान सा कैच, गिरने वाला ये 5वां विकेट। ये स्ट्रोक थोड़ा फ्लैट चला गया था। पंकज गोंधले को सफलता मिली है 23 रन बनाए आउट होने से पहले जयेश मात्रे ने। मात्रे ने काफी खतरे निर्माण किए हैं वाघबिल टीम के सामने। नए बैट्समैन यश आए हैं। ये गेंद दिशाई ने, पंकज की यही कोशिश रही है कि ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंदबाजी की जाए, हालांकि उनकी गेंदों में काफी घुमाव भी देखने को मिला है। स्कोर 55 पर पहुंच चुका है। छोटी बाउंड्री को टारगेट किया, हवाई फायर और गेंद मैदान के बाहर। 6 रन। कमाल की बल्लेबाजी, कमाल की बल्लेबाजी डेथ ओवर में जय बजरंग स्पोर्ट्स कारिवली की।
बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, स्लॉक स्वीप का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, अंतिम गिनती पारी की और उसको भेज दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में 6 रनों के लिए। जतिन का ये दूसरा सिक्सर, 13 रन बनाकर नाबाद रहे, मात्र 3 गेंदों का सामना किया और एक बहुत बड़ा टोटल टॉस गंवाने के बाद पहले बैटिंग करते हुए बना लिया है। जय बजरंग कारिवली टीम ने 61 रन बनाए हैं 5 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर और जीतने के लिए 62 रनों की बड़ी चुनौती भव्या सुनील स्पोर्ट्स वाकबिल टीम के सामने। आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। तुरंत टॉस किया जाएगा। एक और बड़ा मुकाबला आपके सामने आ रहा है बादशाह 11 टिम्बोली और बामन डोंगरी के बीच में। इट्स ओवर टू यू सिद्दीक भावे। बादशाह 11 टेंबिवली टीमच्या कॅप्टनला ऑफिशियल कॉल आहे, तुम्हाला टॉस साठी रिपोर्ट करायचा आहे. हायलाइट सध्या आपण पाहता स्क्रीनवरती. मागच्या मॅच मध्ये काय काय घडलं हे तुम्हाला दाखवत असताना प्रिन्स मूवीज आपल्या टेलिव्हिजन सेट वरती. बादशाह 11 टेंबिवलीचे कॅप्टन ऑफिशियल कॉल आहे, लक्ष सुद्धा गोष्टीकडे. बामन डोंगरीचे कॅप्टन आमच्या सोबत जोडले गेले. तेजस मात्रे, रायगड क्रिकेट मधलं एक भरपूर मोठं नाव. आणि या टॉस साठी नक्कीच मी इन्व्हाइट करतो आमचे मान्यवर चिंतामण घरत यांना. त्यांच्या शुभ टॉस केला जाईल. इन्व्हाइट करतो बामन डोंगरीच्या कॅप्टनला, या आपण टॉस बॉक्स मध्ये. आणि बादशाह 11 टेंबिवलीच्या कॅप्टनना देखील पटकन जॉईन व्हायचं आमच्या सोबत. तर दोन्ही कॅप्टन आमच्या सोबत आलेत. आधी आम्ही जे नाणं आहे ते दोन्ही कॅप्टनला दाखवतोय. एका बाजूला चॅलेंज स्पोर्टचा लोगो आहे, चॅलेंज स्पोर्टचा लोगो, आणि दुसऱ्या बाजूला महापौर चषक. म्हणजे चॅलेंज स्पोर्ट्स किंवा महापौर चषक हेड अँड टेल असं कॉल तुम्हाला करायचा आहे. H&T लोगोवरती ऑलरेडी आहे. एक ते चॅलेंज स्पोर्ट्स महापौर चषक किंवा हेड अँड टेल असा कॉल तुम्हाला करायचा आहे. महापौर चषक अशी मागणी होती आणि आलाय चॅलेंज स्पोर्ट्स, म्हणजे टॉस जिंकलाय टीम बादशाह 11 टेंबिवलीनं. मान्यवरांचा खूप खूप आभार. एक मोठी मॅच आपल्या समोर येते. टॉस जिंकलाय बादशाह 11 टेंबिवलीच्या कॅप्टननं. समोर बामन डोंगरी संघ. निर्णय का असेल? फिल्डिंग करून 5 षटकांची मॅच आहे. बामन डोंगरी म्हटलं तर रायगड क्रिकेट मधला एक भरपूर बलाढ्य संघ. कितपर्यंत त्यांना थांबवण्याचा मानस असेल? बामण डोंगरी एक चांगला संघ आहे. आम्ही त्यांना 40-45 पर्यंत थांबवायचा प्रयत्न करू. महापौर चषक म्हटलं तर प्रत्येकाचं स्वप्न असतं आणि 1984 पासून जी सुरुवात झाली त्या इतिहासामध्ये 2021 ला प्रथमच ग्रामीण संघांना संधी दिली गेली. ते काय म्हणशील महापौर चषकाबद्दल? चांगलं आयोजन आहे. आम्हाला संधी दिल्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. विश यू ऑल द बेस्ट. तर आपल्यासोबत तेजस म्हात्रे आहेत. खरं तर ते महाराष्ट्र पोलीस दलात कार्यरत आहेत आणि अतिशय चांगलं कार्य क्रिकेटसाठी आणि कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवरती कोरोना वॉरियर्स म्हणून या नावाकडे पाहिलं गेलं. खरं तर तुझं भिवंडी नगरीमध्ये मनपूर्वक आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. समोर टेंबिवली टीम आहे, टॉस गमावलाय. तू टॉस जिंकला असता निर्णय का असता? नक्कीच मी टॉस जिंकल्यावरती प्रथम फलंदाजीच करणार होतो, त्यामुळे मला माझ्या मनासारखंच झालेलं आहे. 5 षटकांची मॅच. आम्हाला आठवतं की रोज तू या मॅचचा ऑनलाईन क्रिकेटचा आनंद घेतो. आज प्रत्यक्षात फायनली आता वेळ आली आहे लढाईची आणि समोर टेंबिवली सारखी एक बलाढ्य टीम आहे. 5 षटकांचा सामना आहे. कुठपर्यंत जाण्याचा मानस असेल? नक्कीच टेंबिवली संघ खूप चांगला संघ आहे. त्यांची गोलंदाजी पण चांगली आणि फलंदाजी सुद्धा चांगली आहे. आम्ही सगळे सामने त्यांचे बघितलेत. आता ते रायगडमध्ये सुद्धा खेळायला येतात, त्यामुळे थोडासा अंदाज त्यांचा आलेला आहे. थोडासा अभ्यास आम्ही केलेला आहे, परंतु 50 ते 55 धावा काढण्याचा नक्कीच आम्ही प्रयत्न करू. तेजस म्हात्रे म्हटलं तर स्वतः किंजल स्पोर्ट चषक जी रायगड मधली एक मानांकित स्पर्धा होते त्या स्पर्धेचा शिल्पकार आहे. या स्पर्धेबद्दल, महापौर चषकाबद्दल तुझं मत काय? खूपच म्हणजे खूपच चांगला ग्राउंड होतोय. एक स्टेडियमच आहे आणि मेन म्हणजे इथे मी तुझा आभार मानतो की तू मला कुठे भिवंडी साईडला स्पर्धा असली तर पहिला कॉल मला करून सांगतो, तेजस दादा ही टुर्नामेंट खेळ तू. त्याबद्दल मी तुझा सुद्धा आभारी आहे आणि इथे आम्हाला खेळायला संधी दिली त्याबद्दल खरोखर मी महापौर चषक आणि इथल्या आयोजकांचा मी आभारी आहे की आम्हाला इथे खेळायला त्यांनी संधी दिली. तर तुझं देखील भिवंडी नगरीमध्ये वेलकम. आता दोन मोठ्या संघांमध्ये एक मोठी लढत दोन्ही कॅप्टनला आपण देऊया. लेजंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटील साहेबांकडून शुभेच्छा. मॅच सुरू होती, लगेच जाऊया आपण प्रियांशी स्टुडिओ मध्ये. ओव्हर टू यू प्रियांशी स्टुडिओ. Thank you, Omkar. Back to cricket now.
Mask is very much compulsory. Please use mask. It's going to be Parshu Patil. Goes to Pankaj Gondle, swing dash ball. This is the Pankaj branded stroke. He is the key player of Wakbil since from 20 years. What a hit. बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है और उनको इस तरह से आप फुल टॉस गेंद कतई नहीं कर सकते हो। पहली गेंद और पहला सिक्सर इस पारी का पंकज के बल्ले से। जबरदस्त बैट का स्विंग है, ताकतवर खिलाड़ी है, ताकतवर शॉट्स खेलना पसंद करते हैं पंकज। 12.40 the asking run rate. And Pankaj bowled very expensive in last over. Consider 19 runs. But what a start. What a reply from Pankaj. Pankaj Gondle. He is the key player since from 20 years in Wakbil team like Mega, Pankaj, Ketan. Lot of name is there. Like a fast bowler, look like a Marshall. सबसे अच्छी बात यह वागविल टीम के लिए कि उनकी बल्लेबाजी बहुत मजबूत है, बहुत फायर पावर है उनके बैटिंग में। One of the famous name in Thana ruler. This time beautiful ball, try to york but equally played, dig out to deep mid off and with the stroke batsman through for one. Pankaj Gondle moves up to 7 and Wakbil 7 without loss, chasing a target of 62. Parshu has started with a loose delivery, but the previous delivery was a much better delivery. Nandu Patil, oh beauty, swinging Yorker. Still Parshu Patil looking vintage Parshu. Lovely ball indeed on the stumps, swinging Yorker. Absolutely true. Good thinking from the bowler, using his all the experience for his side, bowling Yorker lane deliveries. Look at that. Right arm over the wicket. Misstepping. What's happening there? I think batsman wasn't ready there. Pankaj moved away. And now again is ready to play. 8 for no loss. Today is a clean climate. No cloud in the sky. Sun shining brightly and you are watching the A1 show of Indian cricket Mayor Cup 2021 from Art of City Challenge Cricket Ground. This time left lawn, right decision, white signal from umpire. 1-2 score now, score moves up to 9 without loss. Look at that, flags are fluttering. The wind is going on here. Breezy day. Nice conditions for the game of tennis ball cricket here at the Challenge Cricket Ground of Bhiwandi. A beautiful Challenge Cricket Ground. Yes, this is the toppest place of challenge sports. The flags right on the old commentary box of challenge. What's happening there? Umpire is having a chat with the fielders as well as with the batsmen at the non-strikers end. And this is the great motivational quote, I think. Go ahead, accept all the challenges in your life and just go ahead. Yes, and accept the challenges in your cricket journey. Here goes Parshu, facing him Pankaj Gondle. This time a lovely looking straight drive, but equally stopped, slightly fumble, and batsman taken 2. 2 more to total now, score moves up to 11 without loss. I think a positive mind reply from Wakbil, chasing a target of 62. Pankaj on 9 and just 3 balls with the help of 1 glorious 6. Nandu on 1. And it's a good start, 11 without loss. Still we are in the first over. Target is 62. Parshu, this time fine delivery, beast batsman. Nandu Patil tried to play a cross-batted stroke. Slightly not a very good stroke from the key player. Fine bowling, fine piece of bowling after being struck for the 6 of very first ball in this first over. He has come back strongly.
Pashu. Balls to Pankaj, another fine delivery. What a bowling. Last one was up to the batsman and Pankaj Gondle himself york. So good comeback by the bowler, and after first over it's 11 without loss. Look at that, the last delivery of the first over, right up in the popping crease there. No chance whatsoever for the batsman to play a big shot. Pankaj went for the big shot but missed the line of the ball as well. Good delivery. एक ओवर की समाप्ति 11 रन बने. जो बचे हुए 4 ओवर हैं उसमें जीतने के लिए 51 रन चाहिए. ये हमारा प्रेजेंटेशन बॉक्स. आज जिनका जन्मदिन है मैजिक ऑफ पीवंडी उमा मां नजर आ रहे हैं. नगर सेवक नितिन पाटिल और विश्वास भुई जी हमसे जुड़ चुके हैं. आपका भी हार्दिक स्वागत है. मोस्ट वेलकम. Still long way to go for Bhavya 11 Bagbil team. 51 more required in remaining 24 balls. Required rate is close to 13 now. बिल्कुल. हालांकि 10 विकेट हाथ में है और वाकबिल थाना परिसर. ओ हो क्या खूबसूरत मंजर है. दरख्तों में पंछी एक साथ बैठे हुए. ये जोड़ी नंबर 1. खूबसूरत जोड़ा है. कमाल का कैमरा वर्क. संदीप नाइक इस मरतबा बैकफुट पे गए. शॉट हम पुल किया. डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी है. 1 रन बनता हुआ स्कोर में. स्कोर आगे सरकता हुआ 12 पे पहुंचा है. अगले टॉस को जीता है बादशाह 11 टेम्बोली ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है जीवदानी बामन डोंगरी के सामने. संदीप नाइक जेनविन इन कटर बॉलर. इस मरतबा सीधा उछाल दिया. फील्डर है. ओ परशु ने इस कैच को छोड़ा है. बहुत महंगा पड़ सकता है क्योंकि ये कैच पंकज गोंदले का है. वाकई में क्रिस के कोने से आगे रखी हुई गेंद थी. थोड़ा सा मिस टाइम कर बैठे थे. सामने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे लेकिन लॉन्ग ऑफ की तरफ चली गई थी. और देखिए थोड़ा मुश्किल अवसर जरूर था लेकिन ऐसे अवसर भी आपको भुनाने पड़ेंगे क्योंकि पंकज बहुत ही खतरनाक और बहुत बड़ी बल्लेबाज है. कई टर्निंग पॉइंट ना साबित हो जाए इस मैच का. संदीप नाइक जिनके बारे में मैं आपको आगे बताता चलूंगा. इस मरतबा बढ़िया गेंद. क्या विकेट कीपिंग थी वहां पर. तीसरे अंपायर की मदद. देखिए अजय गरत संदीप नाइक 3 साल तक ऐसे गेंदबाज रहे. अजय मैं आपको बताता चलूं कि संदीप नाइक 3 साल तक ऐसे गेंदबाज रहे जिनको चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे किसी ने सिक्सर नहीं मारा. और उसके बाद बीसीसी के शेरू दिवकर ने उनको 3 सिक्स लगाए थे 3 साल बाद. यानी कि बहुत अच्छा रिकॉर्ड है संदीप नाइक का इस मैदान पर. नॉट आउट ये सिग्नल आता हुआ क्योंकि पैर था. बैकफुट जो है पैर का थोड़ा सा हिस्सा लाइन के उस पार भी था. संदीप नाइक फिर से अच्छी गेंद. कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं. फिर तीसरे अंपायर की मदद. टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल होता हुआ. लगातार दूसरी गेंद पर हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है. तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है. नज़दीकी मामले है तो अंपायर भी मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला ले रहे हैं वहाँ पर. ऑन फील्ड अंपायर्स अच्छी अंपायरिंग देखने को मिली है. अमर महतो स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में. हतीम कपासी मुख्य अंपायर की भूमिका में. इस समय कहा जाता है एक्सपीरियंस इज नॉट ओनली बेस्ट टीचर बट ऑल्सो बेस्ट फीचर. बहुत विंटेज नजर आ रहे हैं और बहुत क्रिकेट बाकी है संदीप नाइक में. ये अलग बात है कि पिछले 1-2 सीजन से वो सिटी क्रिकेट के पिक्चर पे नहीं है. कमाल का टेलीकास्ट आप चैलेंज स्पोर्ट्स का देख रहे हैं प्रिंस मूवीज के सौजन्य से. गेंदबाज समझ चुके हैं, फील्डर्स भी समझ चुके हैं कि नतीजा क्या आने वाला है. मैच औपचारिकताएं शेष है. ये देखिए अल्ट्रा स्लो मोशन में दूसरे एंगल से अच्छी तकनीक बैट स्लाइड किया उन्होंने आखिरकार और नॉट आउट. बल्ला अंदर कर दिया था लेकिन कहना होगा कि इस ओवर में अग्नि परीक्षा पंकज गोंदले की ले रहे संदीप नाइक.
What a player he is. संदीप नाइक राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा उछाल दिया गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर स्टैंड में 6 रन। कमाल का शॉट, ओवर पिच गेंद थी और जैसी गेंद वैसा समाचार। इस स्ट्रोक में क्लास झलकता हुआ पंकज गोंदले का फ्रंट फुट पर आकर सीधे बैट से लॉफ्ट किया उन्होंने, लंबी बाउंड्री को आसानी के साथ क्लियर करते हुए। वीआईपी डायस पर हालांकि देखा जाए तो 2 वीआईपी डायस कहे जा सकते हैं। जो पौर चषक 2021 का प्रेजेंटेशन बॉक्स है वहां पर इस समय मेहमान बैठे हुए हैं, यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि अब दिन का खेल चल रहा है, धूप खिली हुई है, बहुत तेज धूप है। लेकिन क्या जबरदस्त प्रहार किया, ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, टाइमिंग लाजवाब थी। दूसरा सिक्सर इस पारी का पंकज के बैट से। संदीप नाइक राइट आर्म ओवर द स्टंप्स, इस मरतबा हवा में खेला डाउन द ग्राउंड। अब की बार कोई गलती नहीं, बढ़िया कैच और जश्न देखिए संदीप नाइक का। यस, जो कैच छोड़ा था उसकी भरपाई कर दी। जबरदस्त कैच। इस बार भी देखिए ज्यादा ताकत नहीं झुकी थी, फ्रंट फुट पर आकर लॉफ्ट किया था सीधे बैट से और बहुत मुश्किल अवसर था ये। दाहिनी तरफ जाना था, वहां पर फील्डर को परशु थे जिनके हाथ से कैच छूटा था, लेकिन क्या जबरदस्त पूर्वानुमान, बहुत तेज ट्रैवल कर रही थी गेंद, गजब का ये कैच। और सबसे बड़ी बात थी कि सीधे प्लेट से स्ट्रेट खेला था, बहुत बढ़िया कैच। कैचेस विनिंग मैचेस। अब 2 ओवर की समाप्ति, मैच में गर्मी, 20 रन और 1 विकेट, नेक टू नेक फाइट गोइंग ऑन, कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। आसिफ रंगरेज बता रहे हैं कि 3 ओवर में 42 रन, जो आस्किंग रन रेट है वो 14.00 का। कमाल का मुकाबला हो रहा है, धमाल का मुकाबला हो रहा है। कमाल धमाल अक्सर होता है जब भी चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब टूर्नामेंट का आयोजन करती है। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल साहब का जब टूर्नामेंट होता है तो कमाल और धमाल अक्सर देखने को मिलता है और पहले 6 दिन का खेल तो कमाल का ही रहा है। आज भी रोमांचक मैचेस हमें देखने को मिल रहे हैं। 62 का टारगेट है, 2 ओवर में 20 बने हैं। बॉलिंग में परिवर्तन, युवा गेंदबाज हरीश आक्रमण पर आते हुए। हरीश पाटिल कीर्तिमान बना था यहाँ पर, क्या मुकाबले थे बैक टू बैक। नए गेंदबाज आए हैं और नए बल्लेबाज भी क्रीज पर पहुंचे हैं। चेतन पाटिल, हरीश पाटिल इस मर्तबा कट करने की कोशिश, मोटा सिरा गेंद शॉर्ट थर्मेन में जाती हुई 1 रन। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं गेंद को भेजना पड़ेगा मुझे लगता है कोपचा फूड हब, क्योंकि बड़े स्ट्रोक्स की आवश्यकता है। इस मर्तबा बढ़िया गेंद इन द एयर बीट किया। कहीं ना कहीं नंदू पाटिल उतने सुर और ताल में नहीं लग रहे। चेतन पाटिल नए बैट्समैन आए, ये बहुत ही खतरनाक बैट्समैन है, बहुत जल्दी शुरू हो जाते हैं। बल्लेबाजी तो कागज पर काफी मजबूत है, लेकिन प्रत्यक्ष मैदान में भी वो दिखाना पड़ेगा मैच को जीतने के लिए। कमजोर गेंदों का फायदा उठाना ही पड़ेगा, अच्छी गेंदों पर भी अच्छे शॉट्स खेलने होंगे। इस मर्तबा वाइट घोषित के अंपायर ने। देखिए कारियोली की जो गेंदबाजी है उसमें भी काफी धार लग रही है और संदीप नाइक ने तो साबित कर दिया है कि भले से वो पिक्चर से गायब हैं लेकिन उनका क्लास आज भी वही है। वन ऑफ द ग्रेट फास्ट बॉलर संदीप नाइक, ग्रेट ऑलराउंडर। संदीप नाइक ने अच्छी गेंदबाजी की, क्रीज के कोने का अच्छा इस्तेमाल किया, इन कटर डिलीवरीज का इस्तेमाल किया उन्होंने। इस बीच अगेन शॉट हम पुल और पावरफुल एफर्टलेस स्ट्रोक, कहीं भी लगा नहीं है कि ताकत है शॉट में, टाइमिंग के बलबूते पे खेला हुआ स्ट्रोक। बहुत जल्दी अपना इलाका चुन लिया था, क्रीज में बहुत पीछे जाकर एक तरह से ऐसे लग रहा है कि दिशा दिखाई है मानो उन्होंने। ज्यादा ताकत नहीं थी स्ट्रोक में लेकिन टाइमिंग लाजवाब। स्क्वायर ऑफ द विकेट, डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से खूबसूरत सिक्सर। टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर थोड़ा भी टाइम इधर उधर होता है, ये देखिए जाली पकड़ के वहां पे सचिन गोयल को देखा जा सकता है। उनके साथ मयूर पाटिल भी है, सन ऑफ लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल। 28 रन बन चुके हैं और 34 रनों की जरूरत है। विकेट हाथ में है जिसका फायदा हो सकता है कहीं ना कहीं भव्य 11 को। लेकिन कल देर रात जो दर्शकों ने जाली पकड़ी थी वो समा तो कुछ और था।
ये देखिए मास्क बहुत ज़रूरी है। फिर से हम सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको मास्क पहनना है, कंपलसरी है, और सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन रखें। मैच बहुत रोचक स्थिति में है, बहुत ही दिलचस्प क्रिकेट इस मैच में देखने को मिल रहा है। शायद गेंद बदलने की मांग की है अंपायर ने। 28 रन में अगला मुकाबला बादशाह 11 वन द टॉस सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे गावदेवी नितलास बनाम जयदुर्गा सुरई, उसके बाद आर्यन स्पोर्ट छिड़के और शेलू माता वल क्रीडा मंडल, उसके बाद ओपन भिवंडी सिटी से होम साइड टेमगर और आरडी 4440। गणेश और बंटी का कड़ा संघर्ष ओपन से, तीसरे मैच की विजेता टीम, चौथे मैच की विजेता टीम 9वें मैच में, 10वां मैच 5वें मैच की विजेता टीम और छठे की। अगली गेंद इस मर्तबा हवा में है और आउट। बैट्समैन नंदू पाटिल। नंदू भी अजीब बल्लेबाज है, 2 फुल टॉस गेंदें मिली, उसका फायदा नहीं उठा पाया। अच्छी गेंद पर छक्का जड़ा उन्होंने। यही क्रिकेट की खूबसूरती है, कई बार अच्छी गेंदों पर बड़े शॉट्स देखने को मिलते हैं और कई बार इस तरह से बैट्समैन आउट हो जाते हैं। कमजोर गेंदों पर टॉपेज लगा था और एक आसान सा कैच। तो नंदू पेविलियन में लौटते हुए आउट होने से पहले उन्होंने केवल 8 रनों का योगदान दिया। दोनों भी ओपनर्स पेविलियन में लौट चुके हैं। 14 गेंदें मात्र शेष है। जीतने के लिए भव्य 11 वाघबिल टीम को अभी भी 34 रनों की आवश्यकता। कैप्टन मनोज पाटिल आए हैं, बहुत मजबूत काटी के और मजबूत स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कहना होगा कि कारिवली की जो गेंदबाजी है उसने एक बड़ी टीम को अंडर प्रेशर कर लिया है। पहले डेथ ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की थी, आखिर के जो ओवर्स थे उसमें काफी अच्छे रन बनाए थे जयेश मात्रे और जतिन ने। अब गेंदबाजी से टेस्ट कर रही है वाकबिल को गेंदबाज हरीश पाटिल। इस मर्तबा लॉन्ग शफल किया, निकाल दिया गेंद को, बढ़िया फील्डिंग, पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है कारिवली। प्रदीप नाइक थे वहां पर, क्या कमाल का क्षेत्ररक्षण देखने को मिला। निश्चित रूप से उन्होंने बाउंड्री बचाई है, बहुत फुर्तीले नजर आए, चुस्त और चौकन्ने खिलाड़ी, बहुत ही मुस्तैद खिलाड़ी। प्रदीप नाइक थे, 2002 के ये भी हीरो रहे थे। कमाल की फील्डिंग हो रही है, कमाल की बॉलिंग हो रही है। हरीश पाटिल युवा, इस मर्तबा छोड़ दिया वाइट। वाकबिल का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 पे पहुंचा है। 30 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यानी कि अब 13 गेंदों में 32 रनों की जरूरत मुकाबला जीतने के लिए भव्य 11 वाघबिल टीम को। ये ओवर थोड़ा लंबा चल रहा है, 2 अतिरिक्त गेंदें की है युवा गेंदबाज हरीश ने। हरीश पाटिल इस मर्तबा बल्ले के अंदर लगी है, ऑन ड्राइव किया है, 1 रन बनता हुआ। बॉलिंग कमाल की हो रही है, लेकिन फील्डिंग का साथ भी पूरा मिल रहा है। थोड़ा सा मुश्किल समीकरण जरूर है बल्लेबाजों के समक्ष, लेकिन बनाया जा सकता है यह समीकरण, क्योंकि 2 ओवर में 31 रन चाहिए। जितने रन 3 ओवर्स में बने हैं उतने ही 2 ओवर्स में अब बनाने हैं। गियर्स जल्दी जल्दी चेंज करने होंगे। दोनों भी बल्लेबाज शायद अब अपनी गाड़ियों को टॉप गियर में डालने का प्रयास करेंगे। 1 पर बैटिंग करते हुए मनोज पाटिल, 2 पर खेल रहे चेतन पाटिल। देखिए दोनों बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप डिपेंड करता है संदीप नाइक के ओवर पे। इज द की बॉलर। ये ओवर मैच ऊंट किस करवट बैठ रहा है ये बताएगा, और बताएंगे सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत। जी हम तो बताएंगे, लेकिन आपको भी हमारे साथ ही रहना है। 9 रन देकर 1 विकेट लिया था पहले ओवर में संदीप नाइक ने। थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग ऊपर, पॉइंट अंदर है, 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर। बढ़िया गेंद, लेकिन अच्छा शॉट कहा जा सकता है। सीधे बैट से पुश किया था सामने, यॉर्कर लेन गेंद दी, सिंगल उस पर निकाला है। इस गेंद पर सिंगल ही शायद बन सकता था, कुछ और नहीं हो सकता था मेरे ख्याल से। दिस इज द ग्रेट बॉलिंग, दिस इज द ग्रेट बॉलिंग। संदीप नाइक, द की बॉलर, द की ऑलराउंडर इन तालुका क्रिकेट सिंस फ्रॉम 22 years। लगातार वाइड ऑफ द क्रीज बॉलिंग कर रहे हैं संदीप नाइक, अपना अनुभव झोंकते हुए अपनी टीम के लिए।
इस बार सीधे फील्डर के पास और तेज सिंगल, बढ़िया कॉल। बहुत जल्दी बैकअप भी किया था नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज मनोज ने, जिस वजह से वो पहुंच पाए। डेंजर एंड पर उनको दौड़ना था। पूरी तरह चार्ज हो चुकी है कारिवली की टीम। क्या फील्डिंग की जोगेंद्र ने, मुकाबले में बहुत दम डाल दिया है संदीप नाइक की गेंदबाजी ने। 10 गेंदे और जीतने के लिए 29 रनों की आवश्यकता वाकबिल टीम को। अगली गेंद राइट ओवर द विकेट। इस बार लॉफ्टेड शॉट बॉलर की सिर के ऊपर से, अच्छा शॉट है लेकिन लॉन्ग ऑफ पर बहुत ही बढ़िया फील्डर वहां पर मौजूद है परशु। जबरदस्त फील्डिंग, फिर से सिंगल। इक्का दुक्का रनों से बिल्कुल भी बात बनने वाली नहीं है वाकबिल टीम की। 9 गेंदों में 28 रन अब बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। 100 बातों की एक बात तो यह है कि अब ओस चाटने से प्यास बुझने वाली नहीं है वाकबिल टीम के। हवाई फायर्स करने होंगे, चौके छक्के लगाने होंगे। यस, एयर स्ट्राइक अब करना होगा, हवाई हमला। देखना ये बैट से है या नहीं, विकेट कीपर से रुकी तो नहीं है। एक रन पूरा करते हुए बैट्समैन शफल करते हुए खेलने का प्रयास किया था और बाई का इशारा, अतिरिक्त रन। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है संदीप नाइक की। इट हैज बीन अ ग्रेट बॉलिंग फ्रॉम संदीप नाइक। आप देखिए उन्होंने वेरिएशन पे ध्यान दिया है, गेंदें कितनी नपी तुली डाल रहे हैं, बैट्समैन को कोई भी मौका नहीं दे रहे। स्ट्राइक के समय मनोज के पास 3 पर बैटिंग करते हुए 8 गेंदे और 27 रन चाहिए। क्या ये बाहर जाएगी? जी नहीं, बैट्समैन को जाना होगा बाहर। बहुत अच्छा कैच, लो कैच था लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से उसको लपका है हरीश ने। देखिए अजय करत, अगर हम भिवंडी परिसर की बात करें, बोरियोली, कारिवली, मापोली, मानकोली, ये जितने ली हैं, अगर इनकी बात करें तो इनकी एक गांव की अगर मजबूत टीम बनती है तो ये बड़े बड़े टीमों को चुनौती दे सकती है। जी हाँ, वली वली मचा दिए है उन्होंने खलबली। कारिवली के खिलाड़ियों ने मचा दी यहाँ पर खलबली वाकबिल के खेमे में। 7 गेंदों में अब 27 रन चाहिए, बड़ा मुश्किल काम है। हालांकि असंभव कुछ भी नहीं होता है क्रिकेट के खेल में। संदीप नाइक अपने स्पेल की अंतिम गेंद लेकर चेतन के लिए। केतन के पाट, ओ ये बहुत ही अच्छा शॉट है लेकिन अंदर ही है मैदान के। दूसरे के लिए पलटना चाहते हैं और 2 रन मिलेंगे। चेतन के बल्ले से ये स्ट्रोक आया था, फ्रंट फुट को आगे लेकर फिर लॉफ्टेड एक्स्ट्रा कवर ड्राइव खेला था उन्होंने, लेकिन बाउंड्री हासिल नहीं कर पाए। 2 रन मिले आखिरी गेंद पर और इसके साथ ही शानदार स्पेल समाप्त होता हुआ संदीप नाइक का। बहुत ही खूबसूरत शॉट था लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे। 2 रन अंतिम गेंद पर आए हैं। स्कोर 37 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति। आखिरी ओवर में 25 रनों की जरूरत वाकबिल टीम को। बिल्कुल, 2 ओवर में संदीप नाइक ने कुल मिलाकर 15 रन दिए और 2 विकेट लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनकी गेंदें बैट्समैन के समझ में नहीं आई। अगर संदीप नाइक की वाकई में गेंदबाजी आपको भा गई होंगी तो फिर इनके लिए जरूर तालियां बजाए। कमाल की बॉलिंग। कमेंटेटर ओमकार शेट्टे, आपको प्रियांशी स्टूडियो से जुड़ जाना है। कमेंटेटर ओमकार शेट्टे। 6 गेंदे 25 रन। पलड़ा काफी भारी हो चुका है इस मैच में जय बजरंग कारिवली टीम का। आज के दिन का ये तीसरा मैच है। आज कुल मिलाकर 13 मैचेस खेले जाने हैं। ये ग्रामीण का मैच है, इसके बाद भी एक और ग्रामीण का बड़ा मुकाबला बादशाह 11 टिम्बवली और बामन डोंगरी के बीच में। आखिरी ओवर के लिए यश को चुना गया है कारिवली टीम के कप्तान द्वारा। एक और युवा खिलाड़ी और अनुभवी खिलाड़ियों का मिश्रण कारिवली टीम में। शॉट ऑफ लेंथ हुक कर दिया है, फील्डर डीप में मौजूद और थोड़ा सा फील्डर से दूर, गेंद निकल गई है बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। बहुत ही सुंदर शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसको बहुत जल्दी परख लिया था। अच्छी पोजीशन में आकर गेंद को हुक किया था। चौका आया है पहली गेंद पर और बड़े स्ट्रोक की जरूरत ही है।
मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ है। संदीप नाइक जबरदस्त स्पेल, 2 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेट्स। किफायती गेंदबाजी और सफल भी साबित हुए। 5 गेंदें शेष है जीतने के लिए 21 रनों की आवश्यकता। केतन बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है, बायत के खिलाड़ी। अगली गेंद अब नजदीकी क्षेत्ररक्षक, ऑफ साइड में इस बार खींच के मारा है और ये जाएगी बाहर। जी हाँ, 6 रन। कहानी में रोचकता बरकरार। ये बल्लेबाज दिखा रहा है कि इसमें काफी दम है और ये जरूर मैच जिताने का मादा रखते हैं। बहुत ही आकर्षक शॉट ऑफ स्टंप के बाहर से। पुल और हुक खेलने में माहिर है ये बैट्समैन और गेंदबाज शॉट ऑफ लेंथ गेंदबाजी कर रहे हैं। युवा गेंदबाज है, अनुभव की कमी है। हालांकि काफी रन है उनके पास बचाने के लिए, लेकिन अब दबाव गेंदबाज के ऊपर नजर आता हुआ। पहली 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके हैं, स्कोर 47। 4 गेंदें बची है, 15 रनों की आवश्यकता। मैच यदि टाई होता है तो 2 गेंदों का बॉल आउट है और बॉल आउट भी टाई होता है तो जिस टीम ने टॉस जीता है उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। अजय, ये वही बैट्समैन है जब थाना के सेंट्रल ग्राउंड पे 25 से 30 हजार दर्शक थे और राबोड़ी के सामने इन्होंने अख्तर शेख को 3 सिक्सर लगाए थे। ये बहुत ही घातक बैट्समैन है टाइट सिचुएशन के। जी जी बिल्कुल, कई अच्छी पारियां खेल चुके हैं दबाव की स्थिति में, खास तौर पर कई मैच जिताऊ पारियां खेल चुके हैं बायत के बैट्समैन। केतन जो नजदीकी फील्डर था वो चला गया है अब पॉइंट की दिशा में। एक एक्स्ट्रा कवर रखा गया है सर्कल के अंदर। एक शॉर्ट थर्ड मैन है, ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ है, ऑन साइड में सारे खिलाड़ी बाउंड्री पर, 5 फील्डर्स ऑन साइड में। इस बार ऑन द राइज ड्राइव किया, कवर के ऊपर से, क्या गेंद मैदान के बाहर, फील्डर बहुत दूर है, गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल चुकी है। अंपायर का इशारा, 4 रन, दर्शनीय स्ट्रोक। ना सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि अब केतन वाकई में क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। इनको शायद पैट नेम इनको अदलिया कहा जाता है और ये वो बैट्समैन है, आप इतिहास उठा के देखिए कि वाकबिल को अपने बल्लेबाजी से सबसे ज्यादा की ऑफ सक्सेस बैट्समैन रहे हैं केतन। कमाल की बल्लेबाजी। केतन बॅटिंग करतो, मी एवढंच सांगेल, मला आजही तोजा नाईट टुर्नामेंट आठवते. 4 राऊंडमध्ये 23 धावा होत्या आणि नंतर याच फलंदाजानं नंबर 8 वरती येऊन 6 बॉल 6 सिक्सर मारले होते. 3 गेंदे और 11 रनों की आवश्यकता है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, शॉर्ट पिच गेंद है, पुल, पावरफुल, डिलाइटफुल, सक्सेसफुल, 6 रन। आणि हा षटकार आल्यानंतर आहे ना, त्या वाघबीळला कळून चुकलं की यानंतर केतन पाटील काय करणार आहे, कारण ही त्याची पहिली वेळ नाहीये. अशा अनेक मॅचेस त्यांना जिंकून दिलेत. म्हणून म्हणालो ना की ज्यावेळी रायगड मधली सगळ्यात मोठी नाईट टुर्नामेंट म्हणजे तळोजा नाईट स्पर्धा, पहिलीच मॅच 24 बॉल 23 धावानंतर 6 बॉल 6 सिक्सर आणि चॅम्पियन झाली होती मेगा वाघबी संघ टीम. वाकई में ओमकार और अजय, एक बात तो जरूर है कि केतन को लेट ऑर्डर क्यों भेजा था अजय, ये तो कैप्टन ही जानते हैं। डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट बल्लेबाज है, कप्तान को पूरा भरोसा था कि वो आखिरी ओवर में, आखिरी 2 ओवर्स में खासतौर पर 30-35 रन भी बनाने की काबिलियत रखते हैं। 25 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में। पहली गेंद पर चौका, फिर सिक्सर, फिर चौका, फिर सिक्सर। ऑफ साइड में भी अच्छे शॉट्स खेलते हैं, ऑन साइड को तो फेवर करते ही है। ऑन साइड तो बहुत ही मजबूत है उनकी, वो तो देखने को मिल रहा है। शॉर्ट पिच गेंदों को छोड़ नहीं रहे हैं, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी। 2 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 5 रनों की आवश्यकता वाघबिल टीम को। कमाल का ये मैच। केतन आता मागच्या IPL ची आठवण करून दिली, किंग्स 11 पंजाब विरुद्ध राजस्थान रॉयल, आणि हा देखील डाव्या त्याचा बॅट्समन आहे आणि या मॅच मध्ये आता तो मोठे मोठे फटके खेळतोय. ओमकार, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। अगर चैलेंज के इतिहास में ये रन बनते हैं 20+ तो ये चौथी मर्तबा बनेंगे। पहली मर्तबा विश्वास मात्रे ने बनाए, दूसरी मर्तबा ये रन बनाए थे जगदीश नाइक ने, तीसरी मर्तबा किरण पाटिल शेलार ने बनाए थे। अगर ये बनते 20+ चेसिंग में तो चौथी मर्तबा। और इस मेयर कप की यदि हम बात करें तो इस मेयर कप में सबसे ज्यादा रन चेज हुए हैं आखिरी ओवर में 18, जो बिना टीम के विरुद्ध बरोडी टीम ने चेज किए थे। कुछ भी हो सकता है, 2 गेंदे 5 रन, मैच का नतीजा कुछ भी क्यों ना हो, दर्शकों के दिल जीत लिए है केतन ने। केतन रन बना रहे हैं दे दनादन। अगदी आता प्रत्येक खेळाडू येऊन बॉलरला गाईड करून गेला,
पाहिजे त्याचा काय फायदा उचलेल इथे गोलंदाज रनवे रिदम मध्ये अडथळे आणि समोर संकट केतन पाटील नावाचे अंपायरचा इशारा डेड बॉल मॅच अजूनही संपली नाहीये 2 चेंडू 5 धावा काले आपण चित्र पाहिलं टीम धारावी विरुद्ध शेलार मध्ये आणि शेलारच्या विजयनं या रन बनवल्या होत्या आज केतन पाटील बनवेल का हा प्रश्न इस बार सामने लॉब किया, मिस टाइम शॉट है, फील्डर बहुत दूर से आए और लपक लिया कैच, ग्रेट कैच, व्हाट अ कैच एंड व्हाट अ मैच। जतीन पाटील न घेतला हा झेल म्हणजे एक चांगला फिल्डर देखील तुम्हाला मॅच जिंकून देऊ शकतो हे जतीन पाटील इथे सांगत असताना आणि आता एक महत्वाची सूचना 1 चेंडू 5 धावा मॅच टाय झाली तर 2 बॉलचा बॉल आउट होईल ही गोष्ट लक्षात ठेवा क्या कमाल का ये कैच है, युवा खिलाड़ियों का टीम में होने का ये फायदा होता है, उनकी फील्डिंग बहुत अच्छी होती है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे, मिड ऑन की तरफ जाकर दौड़ते हुए कैच लपक लिया है, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस सो फार इन दिस मेयर कप 2021। एक गेंद 5 रन की आवश्यकता है, नए बैट्समैन क्रीज पर आए हैं। पहिल्या इनिंग मधले 30 बॉल या इनिंग मधले 59 बॉल अजूनही कोड उलगडलं नाही आहे की मॅच टाय की इथे संघ जिंकेल वाघबीळ की कारिवली आता त्या आगे ये प्रश्नाचं बताइए उत्तर मिळेल. कि कैच जिसने पकड़ा है वो बाद में फैसला होगा वो मैच पकड़ा है या नहीं, उस खिलाड़ी का नाम क्या है? जतीन पाटील नए बैट्समैन ऋषिश आए हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइकर से इन पर है स्ट्राइक चेतन पाटिल के पास है, जिन्होंने 5 गेंदों में 5 रन बनाए हैं। आखिरी गेंद पर भी 5 रन चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए इस गेंद का दर्शक। आखिरी गेंद फुल टॉस और ये जा रही है चली गई मैदान के बाहर। गोल्डन 6 मैच को जीत लिया है वाघबील टीम ने। यही वाघबील टीम का अंदाज है। गोल्डन 6 के साथ मैच फिनिश किया चेतन पाटिल ने। 8 लाख स्पेशली संदीप नाइक, 8 लाख प्रशु, 8 लाख कारिवली एंड स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन द कैप्टन मनोज पाटिल एंड स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेशन वाघबील। लेकिन वाघबील आपको पता चाहिए आपका आज ही मैच है, इसलिए आपको पहले ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को पूछना है, उसके बाद बाहर जाना है। आइए मैन ऑफ द मैच प्रेजेंटेशन के बाद तरफ हम चलते। अजय बताइए कि मैन ऑफ द मैच कौन खिलाड़ी है? आणि या सामन्याचा सामनावीर 5 चेंडू ज्यानं रन्स केल्या 20 आणि नाव आहे केतन पाटिल। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। हार्ड लक टीम कारिवली, ओवर टू यू प्रेजेंटेशन बॉक्स सिद्दीक जी भावे। थैंक यू ओमकार। केतन पाटिल इज द मैन ऑफ द मैच। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके मैच निकाला। मैं मैन ऑफ द मैच सेरेमनी के लिए चैलेंज के 2 दिग्गज ऑलराउंडर को आवाज दूंगा। एवर हिट ऑलराउंडर विश्वास मात्रे एंड एवर हिट ऑलराउंडर दीनू वेड, जो शेलार ग्राम पंचायत के सदस्य भी हैं। यस, विश्वास मात्रे कम फॉरवर्ड प्लीज एंड दीनू वेड आ चुके हैं। केतन, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है और आपको हम मैन ऑफ द मैच 2 सुपर हिट ऑलराउंडर के हाथ से देने जा रहे हैं। हालांकि गोल्डन 6 लगाने वाले चेतन थे, लेकिन केतन इज द मैन ऑफ द मैच। केतन उर्फ अदल्या। ये पहले ट्रॉफी और ये चेक हम आपको दे रहे हैं। व्हाट अ इनिंग, व्हाट अ इनिंग, मैग्निफिसेंट इनिंग। बहुत धन्यवाद विश्वास एंड दीनू। केतन, हालांकि मुझे पता है कि आपने बहुत से मैचेस जीता है, एक से बढ़कर एक, कौन भूल सकता है नजीब मुल्ला के शोज जिसमें आपकी, लेकिन ये मापुर चषक में खेला, यहाँ का जो अरेंजमेंट है कैसा लगा? महापौर चकेस तो इंटरनेशनल अरेंजमेंट है, कैमरा, पेवेलियन सब अच्छे हैं। ये बताइए आपके आउट होने के बाद आपको पता था कि आपके पार्टनर गोल्डन 6 लगाएंगे? मैं होने के बाद उसको बोला, मैं पप्या नाम है उसको, मेरा इज्जत रख बाबे, मैं इतना मारा है तो अभी लास्ट में इज्जत रख मेरा, तो उतना मेरा इज्जत रखा। आखिर में जीतने जो मैच जीता है, एक लास्ट प्रश्न कि बोल तुझ्या मनात काय घडतो?
लास्ट में मैं मैच निकल के दिया, मगर मेरा श्रेय उनको ही जाता है, चेतन को ही जाता है, क्योंकि उन्हें मैच फिनिश किया। क्या बात है, ये बड़े खिलाड़ी दोस्तों, थाना परिसर में जब नाम चलता है उर्फ आदलिया जिन्हें कहते हैं, केतन का तो बड़े बड़े गेंदबाज कांपते हैं। ये आज फिर आपके सामने रहेंगे, आप जुड़े रहिए। महापौर चषक में इज ओवर टू प्रियांश स्टूडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू महापौर चषक 2000